Okay, so a very welcome to all of you students. So today we are going to move on to the next part of the topic complex numbers. आज हम type 10 start करने वाले हैं. That is nothing but cube root of unity. Now this is also very important part of the topic. So please write down this heading, cube root of unity. I will explain you in detail. चलिए लिखिए. Now let us say x be the cube root of unity. Now unity means 1. So cube root of unity, let us take it as x. Now what will we do? We will cube on both the sides. So cubing करेंगे, so this will become x cube is equal to 1. Now I will bring this 1 to the left hand side. So what will this become? This will become x cube minus 1 is equal to 0. अब रूट फाइंड करने हैं तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा आगे. So 1 means this is nothing but 1 cube. Now we all know the a cube minus b cube का फॉर्मूला. ठीक है, पर फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. a cube minus b cube का फॉर्मूला इज a minus b into a square plus ab plus b square. ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. So what will this become? This will become x minus 1 into x square plus x plus 1 is equal to 0. Because of this formula, we have got this step. Now, when the product is 0, means either of them is 0. So therefore, x minus 1 is equal to 0 or x square plus x plus 1 is equal to 0. So therefore, from here, x का value is 1 or now if you see this quadratic equation, student, we cannot factorize this quadratic equation. So we will have to use formula method. So quadratic equation we have done earlier. 10th standard में भी हमने किया है और quadratic equation से related part we have already done. तो क्या formula है? तो x is equal to minus b. अब यहाँ पे देखोगे तो a, b और c तीनों का वैल्यू 1 है. तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और a का भी वैल्यू 1 है. तो 2 into 1 is 2 itself. Now let us simplify this. So x will be further equal to what? Minus 1 plus minus ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस 3 upon 2. So x will be further equal to minus 1 plus minus under root of minus 3 can be written as root 3 into iota upon 2. है ना? तो x के रूट्स है ये लिखिए x is equal to 1 और x is equal to this. x is equal to 1 और x is equal to this. Write down. ठीक है, तो therefore cube roots of unity. अब ये प्लस माइनस मतलब ये दो रूट्स है और ये एक रूट है. So write down on the next line. Therefore cube roots of unity are, there are three roots. One of the root is 1. The other root is minus 1 plus root 3 iota by 2. This is another root. और जो थर्ड वाला रूट है that is minus 1 minus root 3 iota by 2. So there are three roots of unity. ठीक है, these are the three roots of unity. Out of that you observe this is the real root and these two are complex numbers and in fact they are complex conjugates of each other. ये एक दूसरे के complex conjugates है. So please note down this is the theory part of cube root of unity. Cube root of unity हमें कैसे मिले तो फाइंड करके मैंने आपको बता दिया. नोट डाउन. ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ यहाँ से. नाउ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में
what we'll do, this cube root of unity, let us give these two roots of unity as a name. आप लिखो, ऐसा लिखो आगे, let omega notation, let omega be equal to -1 plus √3 iota by 2 and omega square be equal to -1 minus √3 iota by 2. How do we write down omega? इधर वो ऐसा लिखते हैं, omega ऐसा, give it a curve ऐसा. Do not write down, W नहीं है, it is omega. लिखिए, तो आप याद रखो, this is omega and this is omega square. Why so? क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलता है. That is why this is called as omega and this is called as omega square. तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या हो गए? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना? तो ऐसा लिख लो. Hence cube roots of unity are, on the next line, hence cube roots of unity are 1 omega and omega square. There are 3 roots of unity. ये याद रखना है, very important point this is. So now after seeing the cube roots of unity, students, now we have some properties of cube roots of unity. कुछ ऐसे properties है जिसके ऊपर हमें examples solve करने हैं. But before that, we will first write down the properties of 1 omega and omega square. But before that, note down till here. Now students, please note down the properties of 1 omega and omega square. Now these properties are going to play a very important role in problem solving. ठीक है? देखिए, first property, omega cube का value is equal to 1. अब ये आप याद रखो, तो these two always follow. अगर ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है तो ओमेगा स्क्वायर इज 1 by ओमेगा, और 1 by omega can be written as omega square and omega vice versa way can be written as 1 by omega square. Obviously अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा. ओमेगा क्यूब इज 1. ठीक है. सेकेंड वन, ओमेगा रेज टू 4 का वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा and omega raised to 5 का value is nothing but omega square. Now we had basic powers of iota. Similarly, you remember these are basic powers of omega. Omega cube का value 1 होता है, omega raised to 4 का value omega होता है and omega raised to 5 का value omega square होता है. Basic powers of omega है ये. उसका generalization भी है, generalization also I will give you. And third property है 1 plus omega square is equal to 0. If this is equal to 0, अच्छा अभी ये जो properties है ना, let me tell you, ये हमें prove करने की जरूरत नहीं है. They are already being proven. इसके proof की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है ना? Now but just for your reference, observe what is omega. लिख के दिया मैंने आपको, देखो omega is -1 plus √3 iota by 2. There are 3 roots of unity. एक है 1, दूसरा है ओमेगा और तीसरा है ओमेगा स्क्वायर which is -1 minus √3 iota by 2. Now observe the third property. What it says, 1 plus omega square is 0 ना. अभी आप ये तीनों को ऐड करो, देखो आंसर 0 आएगा. I will show you, प्रूव करके बता देता हूँ ना. एक 1 plus omega square 0 कैसे आया? ऐड करो तो 1 प्लस दिस, तो ये क्या है? -1 प्लस √3 आयोटा. अब देखो दिस प्लस दिस करना है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो दिस विल बिकम होल अपॉन 2 एंड दिस इज -1 minus √3 आयोटा. ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे. तो व्हाट विल हैपन, चेक, दिस वन विल रिमेन सेम, प्लस √3 आयोटा माइनस √3 आयोटा कैंसिल हो गया. What will we get? -1 -2 upon 2. So that is nothing but 1 - 1 and 1 - 1 is nothing but
0। तो हो गया ना प्रूफ। क्या प्रूव हो गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 0 है। डोंट वरी, दे विल नॉट आस्क यू द प्रूफ, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, मैंने लिखा है। तो वी हैव टू रिमेम्बर दिस, ये हमें याद रखना है। ऑब्वियसली अगर 1 प्लस ओमेगा लगेगा प्रॉब्लम में तो उसका वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा हो जाएगा। अब जैसे भी प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से हम इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। तो ऑल रिमेनिंग रिजल्ट्स ऑल्सो कैन बी प्रूव्ड सिमिलरली। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अभी आप इसका क्यूब करोगे ना तो आंसर 1 आएगा, बट जरूरत नहीं है। 1 आई हैव शोन टू यू बाय प्रूविंग इट। इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ लेट अस राइट डाउन जनरलाइजेशन। इसको भी मैं रब कर देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है फिलहाल। तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 लिखो आप, जनरलाइजेशन। for powers of omega. So first generalization you write down, omega raised to 3n is equal to 1. Second generalization you write down, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, omega raised to 3n plus 1 is equal to omega. And the third generalization you write down, omega raised to 3n plus 2 is equal to ओमेगा स्क्वायर होता है। ये जनरलाइजेशन है, लिख लीजिए आप नोटबुक में। मतलब अगर ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर ओमेगा का पावर 3n का मल्टीपल है बट +1 है उसके साथ, जैसे हमने रिमाइंडर फाइंड किया था ना पावर्स ऑफ आयोटा में, तो +1 फॉर्मेट है तो ओमेगा आएगा, एंड ओमेगा रेज टू 3n + 2 फॉर्मेट है तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। टू फॉलो द डिविजिबिलिटी टेस्ट, पावर्स ऑफ आयोटा में हम 4 से डिवाइड करते थे नंबर को, यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है। ओके, so please make a note of this generalization also, it's a very important part. Okay, so let us move on to exercise number 1.4. Question number 1, find value of. Now if you see in this, first 2 questions are textual examples and the next 2 are non-textual examples. Textbook में सारे एक जैसे प्रॉब्लम दिए हैं, so I've taken some different examples for your reference. Now we will use this generalization of powers of omega. ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यू सी, इज इट मल्टीपल ऑफ 3? यस, 3 7s are 21, तो यस इसका आंसर 1 है। इज 105 अ मल्टीपल ऑफ 3? यस, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। नाउ इवन इफ इट इज अ नेगेटिव पावर, n बिलोंग्स टू, अगर नेगेटिव पावर नेगेटिव इंटीजर भी है या पॉजिटिव इंटीजर भी है तो भी वो पावर सॉल्व होता है। तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3। एक्चुअली कैसे सॉल्व होगा चलो करके बता देता हूँ आपको, आंसर तो लिख ही लिया है हमने। फोर्थ वाले का सॉल्यूशन देखो, ओमेगा रेज टू -105 मींस इट इज नथिंग बट 1 अपॉन ओमेगा रेज टू 105, पॉजिटिव पावर हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, 1 अपॉन ओमेगा रेज टू 3 into समथिंग। अब 105 को आप 3 से डिवाइड करो, यू हैव टू चेक विद द डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 35 into 3 105 होता है, तो 3 का मल्टीपल है ना, तो देखो 3 का मल्टीपल है तो आंसर 1 आता है। नाउ लेट्स चेक विथ ओमेगा रेज टू 37, नेक्स्ट वन। वैसे वो डायरेक्टली दिख रहा है कि इसका आंसर ओमेगा रेज टू 37 का आंसर हमें ओमेगा मिलेगा। कैसे बता देता हूं मैं आपको। नाउ 37 को आपको 3 से डिवाइड करना है, जैसे हम पावर्स ऑफ आयोटा में करते थे ना, सेम वे। तो 3 1s are 3, सब्ट्रैक्ट किया 0 7, 3 2s are
6 subtract किया 1 is the remainder. How do we write down omega raised to 37 as? तो इधर remainder तो +1 आ गया. So this is +1. तो +1 is the remainder. अब 37 है तो +1 है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 36 + 1 is 37. So what it says, omega raised to 3n + 1 फॉर्मेट है. अगर वो 3 का मल्टीपल है बट +1 फॉर्मेट है तो आंसर ओमेगा होता है. तो देखो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ओमेगा अकॉर्डिंग टू द जनरलाइजेशन. तो अगर जनरलाइजेशन हमें आता है ना तो ये वर्किंग तो फिर मैंने आपके रेफरेंस के लिए किया है. इट इज नॉट कंपल्सरी टू शो दिस वर्किंग. दिस इज ओनली फॉर योर रेफरेंस. यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द आंसर. ओके, चलो लिख लो. वैसे ही नेक्स्ट वाला करते हैं. दिस इज +1 है तो अब 71 देखोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है तो दिस इज +1. दिस इज 1 इज द रिमाइंडर. चलो नेक्स्ट वन. नाउ 1 अपॉन ओमेगा रेज टू -41 ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. दिस विल बिकम ओमेगा रेज टू 41. तो ओमेगा रेज टू 41 को आप 3 से डिवाइड करो. तो विच इज द मल्टीपल नियर टू 41 बट लेस देन 41? 39 3 का. तो ये हो जाएगा 39 +2 फॉर्मेट वाला है तो +2 है तो ओमेगा स्क्वायर आंसर है. तो इसका आंसर है ओमेगा स्क्वायर. तो आंसर फॉर दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर. वर्किंग आप आपके रेफरेंस के लिए लिख लो. So I hope everyone must have written this. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं. वो जो जनरलाइजेशन वाला पार्ट था वो मैंने रब कर दिया है एंड दीज प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड. तो ये सामने रखे हैं. तो क्वेश्चन 2, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग. अब रैंडमली ले रहा हूं मैं. जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं करूंगा, सिंपल वाले तो आप खुद भी कर सकते हो. तो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ वन. लिखिए क्वेश्चन 2 का फोर्थ वाले का सॉल्यूशन. एग्जांपल 4 का सॉल्यूशन. व्हाट विल डू, लेट अस कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑब्टेन द राइट हैंड साइड. अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे. राइट डाउन LHS. तो व्हाट इज LHS? 2 + ओमेगा स्क्वायर. ये एज इट इज रहेगा. होल क्यूब रिमेनिंग सेम. नाउ ओवर हियर इसमें रीअरेंज कर लेंगे. तो दिस विल बी रिटर्न एज 1 + ओमेगा स्क्वायर टुगेदर -3 ओमेगा. हम बाद में लिखेंगे ऑर्डर में. एंड होल क्यूब रिमेनिंग सेम. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. राइट डाउन. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. वी हैव जस्ट सिंप्लीफाइड एंड रिटर्न दिस. अभी ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें ये रिजल्ट अप्लाई करने हैं. नाउ ऑब्जर्व ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे देखो आप, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 है एंड 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -ओमेगा है. रिजल्ट ये है 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है. तो हमें वहां पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. राइट डाउन. दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इज -1. द होल क्यूब रिमेनिंग सेम -1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इज नथिंग बट -ओमेगा -3 ओमेगा. द होल क्यूब रिमेनिंग सेम. अच्छा, रीजन में आप ऐसा लिख लो. सिंस सिंस 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये रीजन है. बस अभी आप सिंप्लीफाई करो, हमें आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. तो इट्स वेरी सिंपल. 2 - 1 1 क्यूब इज 1 itself माइनस ओमेगा -3 ओमेगा is nothing but -4 ओमेगा का क्यूब. नाउ 1 remaining same.
-4 का क्यूब इज -64, ये -64 हो गया, इंटू ओमेगा का क्यूब। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, सेट आउट ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है। तो व्हाट विल हैपन, दिस इज 1 + 64, जस्ट फॉर योर रेफरेंस लिख रहा हूं मैं। तो आंसर इज नथिंग बट इक्वल टू 65। देखो आ गया RHS, hence proved. So we have considered the left hand side and we have obtained the right hand side. Problem is over. अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये रिजल्ट ही अप्लाई करना है? ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ एग्जाम्पल। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मेक अ नोट, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल पे जाएंगे हम। ठीक है, हो गए बच्चे लोग? So let's move on to the 5th one. Everyone, is it done students? Okay, चलो ठीक है। तो चलिए 5th वाले का सॉल्यूशन देखते हैं अभी हम। उसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही कंसिडर करेंगे। तो क्वेश्चन 2 का एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। Solution for that, let us consider the left hand side. तो अरेंजमेंट तो ठीक है, let us keep it as it is. Freedom 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 6 माइनस, ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट है ना, इसमें थोड़ा हम रीअरेंजमेंट कर लेंगे, 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर + 6 ओमेगा द होल क्यूब। इसको हमें 0 प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, इनसाइड दिस पावर ये दोनों टर्म्स में से हम 3 कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे ये दोनों टर्म्स में से हम 2 कॉमन निकालेंगे। सॉरी डाउन, दिस इज फर्दर इक्वल टू, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से लिखता हूँ, ओपन अप स्क्वायर ब्रैकेट, 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 1 + ओमेगा बचेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 6 एज इट इज। अभी इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे हम, इसमें से 2 कॉमन लिया तो दिस इज 1 + ओमेगा स्क्वायर + 6 ओमेगा the whole cube. So what will happen, 3 into, now 1 + omega का value is minus omega square, check, 1 + omega is minus omega square plus 5 omega square whole raised to 6. This will become 2 into minus omega plus 6 omega the whole cube. Now see what is going to happen, let me finish it off. ये देखिए, -3 ओमेगा स्क्वायर + 5 ओमेगा स्क्वायर, so that is nothing but 2 omega square to the power 6 minus 2 omega plus 6 omega is 4 omega the whole cube. So 2 raised to 6. So 2 raised to 6 is nothing but 64. 64 omega raised to 12 हो जाएगा, minus 4 cube. 4 cube is also 64 ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अगर ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल है तो आंसर 1 होता है, जनरलाइजेशन। हाँ, अभी वैसे बोर्ड पे रब कर दिया है पर आप नोटबुक में देख सकते हो। तो व्हाट विल हैपन, दिस इज 64 into 1 एंड दिस इज आल्सो 64 into 1, तो आंसर इज 0। 64 minus 64, नोट डाउन, प्रॉब्लम इज ओवर। जनरलाइजेशन है कि अगर लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल है तो आंसर इज 1। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी गेट दिस। प्लीज मेक अ नोट। So let us move on to the 6th example. Let us consider left hand side and obtain the right hand side. So लिखिए, consider LHS. So what is LHS? Write down A plus B omega plus C omega square on C plus A omega plus B omega square. इसको हमें ओमेगा स्क्वायर प्रूव करना है। Now what we'll do, यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना है, we will multiply and divide by omega square. लिखो, multiply
एंड डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ओमेगा स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड करना है, आपको कैसे मालूम पड़ गया? तो विल अंडरस्टैंड, इट इज बाय प्रैक्टिस, ठीक है, ऑब्जर्वेशन इनफैक्ट। तो चलो ओमेगा स्क्वायर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और ओमेगा स्क्वायर से डिनोमिनेटर को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन दिस, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, डिनोमिनेटर में ये जो ओमेगा स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर का, इसको हम ये अंदर लेके जाके तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट अस मल्टीप्लाई टू ऑल द थ्री टर्म्स। तो व्हाट विल दिस बिकम, देखिए न्यूमरेटर रिमेनिंग सेम और डिनोमिनेटर व्हाट विल दिस बिकम, this will become c into omega square, this will be a into omega cube, and this will be b into omega raised to 4. So now what will happen, numerator still remaining same, numerator में कुछ भी change नहीं होगा, denominator में what will happen students, c into omega square remaining same, omega cube का value देखो 1 है, तो a into 1 is a plus b into ओमेगा रेज टू 4 का वैल्यू इज ओमेगा, तो दिस विल बिकम b इंटू ओमेगा, इसको ब्रैकेट में डाल दो। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट इसके साथ कट गया, तो क्या बच गया, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इटसेल्फ इज नथिंग बट आवर RHS। तो आ गया ना LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, प्रॉब्लम इज ओवर, नोट डाउन। इसमें थोड़ा जरा ये डिफरेंट तरीका था, बाकी के दो तो हमने इजीली किए थे, बट सिंस इट वाज अ डिफरेंट प्रोसीजर वी हैव डन इट। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। Okay, so let us move on to question 2 का next three examples 7, 8 and 9 beginning with the 7th one। अच्छा, now let me tell you, जो पूरा question 2 जो हम कर रहे हैं ना, each and every example will carry 2 marks, not more than that। चलो example for एग्जाम्पल 7 का सॉल्यूशन लिख लेते हैं। नाउ जब हम LHS कंसिडर करेंगे तो लेट्स रीअरेंज एंड राइट डाउन। अब देखो सभी टर्म्स के बीच में प्लस है, तो थोड़ा जरा हम रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। डाउन a प्लस a ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस b प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, मतलब a वाले टर्म्स टुगेदर b वाले टर्म्स टुगेदर, प्लस साइन है, रीअरेंज कर लिया। नाउ फ्रॉम दीज थ्री टर्म्स आई विल टेक a कॉमन, तो a कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ये तीनों टर्म्स में से हम b कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बट चेक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 0 है, तो हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर। a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, तो आंसर इज नथिंग बट इक्वल टू 0, हो गया प्रूफ। LHS इक्वल टू RHS हो गया, एकदम सिंपल था। चलो 8 वाले पे जाते हैं, नेक्स्ट फटाफट, सिंपल एग्जांपल्स है। नाउ लेट अस कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखिए LHS a माइनस बी इंटू a माइनस बी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ये दिया है, एंड वी हैव टू प्रूव इट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। तो चलो हम क्या करेंगे, लेट अस पुट अप दिस इनटू ब्रैकेट, पहले ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। व्हाट विल हैपन, दिस इज फर्दर इक्वल टू a minus b remaining same, just carry out the multiplication of the two brackets, so a square minus ab ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। देखो एरो से बता देता हूँ, ये a ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी गेट दिस,
Similarly, what will happen? ये minus b omega, this will be also multiplied to both the terms. तो क्या स्टेप मिल जाएगा हमें? माइनस बी ओमेगा इंटू ए इज नथिंग बट माइनस ए बी ओमेगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, क्लोज द ब्रैकेट. नाउ ऑब्जर्व व्हाट कैन बी डन, टू सिंप्लीफिकेशंस एट द सेम टाइम. ये दोनों टर्म्स में से माइनस ए बी को हम कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे हम ओमेगा क्यूब का वैल्यू डाल देंगे. ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या है? तो इट इज 1. Write down what will happen. This will be further equal to a minus b into a square minus ab कॉमन लिया तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा ब्रैकेट में, प्लस b स्क्वायर इंटू 1 इज b स्क्वायर, क्लोज द ब्रैकेट. अभी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या है? -1 है, तो डालो मैम वैल्यू वहां पे. तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू -1 प्लस बी स्क्वायर. क्या रीजन है? ये वैल्यू क्यों -1 आया? तो सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू what will this become, students? So this is further equal to a minus b remaining same, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये. बट दिस इटसेल्फ इज फॉर्मूला फॉर a क्यूब माइनस बी क्यूब. अभी तो हमने एक प्रीवियस एग्जांपल में अप्लाई किया ना, ये खुद ही पूरा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है. वी हैव स्टार्टेड विद द लेफ्ट हैंड साइड and see we have got the right hand side. Problem is over. LHS equal to RHS, hence proof. ठीक है, चलो लिख लो इतना, then we'll move on to the next one. Okay students, so let's move on to example number 9 का solution. So let us consider the left hand side. So लिखिए consider LHS. What is LHS? A plus b the whole square plus a omega plus b omega square the whole square plus a omega square plus b omega the whole square. इसको हमें प्रूव करना है. दिस इज इक्वल टू 6ab. अब हम क्या करेंगे? ऑन ईच एंड एवरी टर्म वी विल अप्लाई a plus b the whole square. तो जब हम इसको एक्सपांड करेंगे हर एक टर्म को, तो क्या मिलेगा? राइट डाउन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. हर एक टर्म पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसका स्क्वायर, so that is a square omega square plus twice of this into this, so plus 2ab omega into omega square, so that is omega cube plus इसका स्क्वायर b स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 प्लस इस पे भी a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला. इसका एक्सपांशन क्या मिलेगा? नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूँ. तो दिस विल बी a स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 प्लस 2ab ओमेगा रेज टू 3 प्लस इसका स्क्वायर इज b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? जहां पे भी ओमेगा क्यूब है उसका वैल्यू 1 डाल देंगे, ओमेगा रेज टू 4 का वैल्यू ओमेगा डाल देंगे. So write down this will be further equal to a square plus 2ab plus b square plus a square omega square plus 2ab. ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, तो ये प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ओमेगा प्लस a स्क्वायर ओमेगा प्लस 2ab. ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है प्लस b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रिमेनिंग सेम. नाउ व्हाट विल वी डू? हमें प्रूव करना है 6ab ना, तो अभी हम क्या करेंगे? a स्क्वायर वाले जो टर्म्स है उसमें से a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे.
और जो बी स्क्वायर वाले टर्म्स है बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे एंड 2ab plus 2ab plus 2ab is nothing but 6ab। तो राइट डाउन क्या हो जाएगा, तो पहले तो लिख लो 6ab प्लस ये जो ब्लू वाले नीचे अंडरलाइन किए उसमें से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो इट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ब्रैकेट में बचेगा, प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे ये तीनों में से, तो ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी लेफ्ट आउट इनसाइड द ब्रैकेट, बट एज वी नो बाय द रिजल्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो हो गया काम हमारा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, so this is 0. What is the final answer? 6ab, and this is nothing but our RHS. अब डायरेक्ट लिखो चलेगा 6ab, but write down the reason over here that since 1 plus omega square is equal to 0 होता है, इसलिए ये दोनों 0 हो गए और हमें आंसर मिल गया। Hence proved LHS is equal to RHS. So see, very easily we have done these examples also. Please make a note. चलो नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें से सिर्फ एक ही पार्ट करूंगा मैं, बाकी के पार्ट सिंपल है। इफ यू नो क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेल, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 एकदम इजी है, इसलिए मैं इसमें एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन 3 का 5th का सॉल्यूशन, तो लेट अस कंसिडर द गिवन एक्सप्रेशन 1 plus omega square 1 plus omega raised to 4 and 1 plus omega raised to 8, इसका वैल्यू फाइंड करना है। वेटेज वही 1 to 2 मार्क, या एमसीक्यू के लिए भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। आपको क्वेश्चंस देंगे, 4 ऑप्शंस देंगे, 0, -1, 2, 3 या ओमेगा, और फिर हमें आंसर फाइंड करना होगा। So now what we do, सबसे पहले let us simplify those higher powers of omega. अच्छा, at the same time हम ऐसा भी कर सकते हैं, 1 plus omega का वैल्यू, 1 plus omega का वैल्यू is minus omega square, check out, 1 plus omega का वैल्यू minus omega square, 1 plus omega square का वैल्यू is minus omega raised to 4 is omega, and 1 plus omega raised to 8, तो 6 plus 2, तो ये ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। सीधा जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन क्या बोलता है, दैट ओमेगा रेस्ड टू 3n plus 2 रहेगा, तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है, तो 8 इज 6 plus 2 है, ठीक है ना। अभी इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम, this into this, minus of minus plus omega square into omega cube हो गया, again 1 plus omega is minus omega square, 1 plus omega square is minus omega। अच्छा, ये तो रीजन लिख दो आप यहाँ पे, since 1 plus omega square is equal to 0, ये रिजल्ट हमने अप्लाई किया। ओमेगा क्यूब का वैल्यू is 1, this into this will give you omega cube, again omega cube is equal to 1, तो इसका वैल्यू क्या है, 1, that's it, problem is over। एकदम सिंपल है क्वेश्चन 3, तो कुछ नहीं करना है, you have to just use these results and get the answer, note down, problem is over, 5th वाला। तो इसमें ये क्वेश्चन 3 में मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल कर रहा हूँ, that I've done, remaining is homework and can be very easily done, okay, please make a note of this। so exercise 1.4 का next question is question number 5, please note down। now it's again a very simple question, same procedure है, थोड़ा सा difference है। x is given as a plus b, y is given as alpha a plus beta b, and z is given as a beta plus b alpha, where alpha and beta are
कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वी हैव टू प्रूव दिस। चलिए ठीक है, अब सबसे पहले क्या दिया उसने, अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ना। लिखिए सॉल्यूशन डाउन, सिंस अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो रिकलेक्ट कौन से क्यूब रूट है यूनिटी के, 1 -1 + 1, बेटा द स्क्रीन हैज बिकम ब्लर, ओके, 1 -1 + √3 आयोटा बाय 2 एंड -1 - √3 आयोटा बाय 2, इसमें से कॉम्प्लेक्स वाले अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो साहब लिखो, लेट अल्फा इज इक्वल टू -1 + √3 आयोटा बाय 2, इसको हमने अल्फा ले लिया, बट एज वी नो दिस रूट इज नथिंग बट, इसको हमने ओमेगा भी नाम दिया हुआ है, तो अल्फा इज ओमेगा, ठीक है, एंड अनदर रूट इज बीटा ना, तो बीटा इज -1 - √3 आयोटा बाय 2, एंड इसको हमने नाम दिया था ओमेगा स्क्वायर। सी इन योर नोटबुक का, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। अल्फा एंड बीटा दे आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये उसके दो कॉम्प्लेक्स रूट है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे भी अल्फा है वहां पे ओमेगा लिख दो, और जहां पे भी बीटा है वहां पे ओमेगा स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन, देयरफॉर व्हाट विल बी x, x is a plus b, ठीक है, y will be omega a, or you can write down a omega plus b omega square, this is y, and z will be a omega square plus b into अल्फा, अल्फा इज ओमेगा, ये हो गया एक्स वाई जेड। अभी मैं क्या प्रूव करना है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। So now let's consider LHS, x into y into z। तो मल्टीप्लाई करेंगे a plus b into a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर into a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, अल्फा के जगह पे ओमेगा डालना है और बीटा के जगह पे ओमेगा स्क्वायर डालना है, बराबर है। नाउ व्हाट विल डू, वी हैव डन दिस प्रॉब्लम अर्लियर, जब क्वेश्चन 2 लिया था ना उसमें ऐसा प्रॉब्लम लिया था, खाली वहां पे प्रूव अलग करना था, a क्यूब माइनस b क्यूब राइट हैंड साइड। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू, तो लिखो देयरफॉर x into y into z is equal to a plus b remaining same inside the bracket। now what will happen, यहाँ पे ये जो a ओमेगा है ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो व्हाट विल दिस बिकम, a स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस b omega square also multiplied to them, so what will this become, ab omega raised to 4 plus b square omega cube close the bracket। ये जो b omega square है ना वो भी ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, राइट डाउन। नाउ व्हाट विल वी डू, इसमें से a इंटू बी कॉमन निकाल लेंगे। अच्छा, या तो फिर उसके पहले ऐसा करो, ओमेगा रेज टू 4 का वैल्यू और ओमेगा रेज टू 3 का वैल्यू डाल देते हैं, दिस इज फर्दर इक्वल टू a plus b remaining same, a square ओमेगा क्यूब का वैल्यू इज 1 प्लस ए बी टेकन कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा, अच्छा कॉमन चलो बाद में लेते हैं, दिस इज ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, ओमेगा क्यूब का वैल्यू हमने 1 डाल दिया, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, तो a प्लस बी रिमेनिंग सेम, दिस इज a स्क्वायर प्लस ए बी कॉमन निकाल लेंगे ये दोनों टर्म्स में से, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा
plus b square remaining same. डालो value a plus b remaining same. This is going to become a square minus ab plus b square. Why? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू -1 आएगा. चेक दिस आउट. ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू -1 आएगा. ओके ना. दिस इटसेल्फ, ये किसका फॉर्मूला है? तो दिस इज फॉर्मूला फॉर a क्यूब प्लस b क्यूब. ये जो पूरा है ना टर्म ही, this itself is formula for a cube plus b cube, and this is x into y into z. So x y z is nothing but equal to a cube plus b cube. हो गया प्रूव. ये तो प्रूव करना. तो इन दिस काइंड ऑफ एग्जांपल, जहां पे देखो ऐसा दिया होता है ना, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. तो एक को आपको अल्फा लेना है, दूसरे को बीटा लेना है. अब किसको अल्फा ले रहे हो और किसको बीटा ले रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. इफ यू टेक अल्फा एज ओमेगा स्क्वायर एंड बीटा एज ओमेगा, तो भी आपको सेम आंसर ही आएगा. So with this students, we have finished off with cube root of unity. जितना theory lectures के लिए required है basic things we have already done. Okay, please make a note of this.